Good morning, everyone. So last class we had done AS5, and today we are going to deal with AS9. Now this particular AS is very easy. Uh, if I ask you what journal entry you pass for sale of goods, that's cash to sales if you have sold goods in cash, and debtors to sale if you have sold goods on credit, right? You advance money to someone, you lend monies to someone, you get interest. That is also an income. If you give your know-how, you get royalties, right? If you invest in shares, bonds, you get dividend interest. So this particular AS will deal about the timing of recording income, right? Suppose you have received an advance. Are you going to show its sales at that point of time? No. Once the goods are dispatched along with the invoice, at that point of time, there are so many events that you get an order, then you start production. On the basis of order, you first plan, and then accordingly you place order for raw material. Or you already have raw material in your warehouse, then you produce, then you get it ready, then the goods are dispatched, then the invoice is raised, then the payments are received. So there are so many events. At what point you are going to record? Obviously when the goods are dispatched, and usually when the goods are dispatched, the invoices are sent along with it, right? So this particular AS is mandatory for all enterprise because it's related to revenue, and every enterprise is having an objective of earning profit. So obviously they will be having revenue in some other or the other form, right? So this particular AS deals with basis on which revenue is recognized in PL, the timing, right? Either it can be from sale of goods or rendering of services, right? Basically, if you talk about us, at the time we receive fees, at that point of time we show it as a revenue. But there can be a case, suppose if I am receiving service fees for 2 years, so in that case I might follow proportionate completion method, like 24 महीने क्लास चलेगा, 12 महीना हो चुका है, उतना रेवेन्यू दिखाओ, बाकी को एडवांस दिखा दो, right? So there are so many methods on the basis of which you can record your revenue. So one is sale of goods, another one is rendering of services, then use of others by enterprise resource. If you use my money, you give me interest, right? If I am investing in shares, you give me dividend. If you use my formulae, you give me royalties. So basically you are using my resource, and in exchange you are paying me these. You are paying me interest, you are paying me royalty, you are giving me dividend for using my resources, right? Now this particular AS does not deal with some cases which has been covered separately under different AS, like you have AS7 for construction contract, AS19 for leases, AS12 for government grants, right? Because you have different AS for these type of business activities. Now these are not included within the definition of revenue. So again AS9 does not cover these. Realized gain resulting from disposal of and unrealized gain resulting from holding of non-current assets. Basically they talk about revaluation reserve, right? Oblique profit on sale of fixed asset. As you know that revaluation reserve has been dealt separately in AS10, right? And profit on sale of fixed asset is AS5. Unrealized holding gain resulting from change in the value of current assets,
or natural increase in herds and agriculture, forest products. Foreign exchange fluctuation, this is AS11. Obligation means suppose you are retiring a bill, so you earn discount, right? You pay less, so that particular income is not covered here. Retirement of bill of exchange. Suppose there is some restructuring. In advanced accounting you have internal reconstruction, remember? So on restructuring you might have some profit loss, so that part is not covered here. So these things are not covered under AS9. Now why I am doing it at the end, because अब आपको पूरा idea है पूरा syllabus में, right? We have done AS7, 19, 12, right? I don't remember this, इसका भी एक AS है but मेरे को याद नहीं आ रहा exactly, right? So what I mean to say कि ये AS में आपको यही revenues 1, 2 and 3 इन सब ऑर्गेनाइजेशंस का अलग से कवर्ड है, ये सब एक्टिविटी कुछ ना कुछ एएस में अलग से कवर्ड है. रेवेन्यू का मतलब क्या है? इट्स द ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश और रिसीवेबल, एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेब्ट, दैट इज डेटर्स जो अपने क्रिएट करते हैं. अदर कंसिडरेशन में बार्टर स्कीम भी आएगा, राइट? तो रेवेन्यू कैसा कैसा रेवेन्यू के बारे में बात कर रहे हैं. If I talk about revenue, right, it's inflow of cash or receivables or other consideration means kind, कुछ भी समझ लो. Now revenue जो आ रहा है, this is flow of cash, किस लिए आ रहा है? 1, 2, 3. सर सेल ऑफ गुड्स हुआ है, रेंडरिंग ऑफ सर्विस हुआ है, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, डिविडेंड. गेटिंग माय पॉइंट? सो रेवेन्यू इज द ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश, रिसीवेबल, अदर कंसिडरेशन अराइजिंग इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस. Ordinary activities from resulting from sale of goods, number 1, rendering of services and use of enterprise resources. अगर मेरा एजेंसी लिया हुआ लाइक कंसाइनमेंट, तो व्हाट इज माय रेवेन्यू? कमीशन इज रेवेन्यू फॉर कंसाइनी. हालांकि माल वो बेचता है लेकिन ऑन बिहाफ ऑफ कंसाइनर बेच रहा है. अगर मैं कंसाइनी की बात करूं तो उसके लिए रेवेन्यू कमीशन होता है. जब जब आप रेवेन्यू दिखाएंगे, आप याद रखिएगा आपका कलेक्शन में अनसर्टेनिटी नहीं होना चाहिए. लाइक हमने किसी को माल बेच दिया और मन में दुकुड़ दुकुड़ चल रहा, पैसा आएगा कि नहीं आएगा, वो नहीं. यू हैव टू बी रेस्ट श्योर दैट द कलेक्शन इज सर्टेन, राइट? अदरवाइज अगर कलेक्शन में कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो आपने क्या करते हैं, रेवेन्यू दिखाते हैं, फिर ऑपोजिट साइड में अपने प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट क्रिएट कर देते हैं, राइट? तो अभी सेल ऑफ गुड्स का मैं आपको बता रहा हूं. अब मैं टाइमिंग डिस्कस करूंगा. आई विल डिस्कस द टाइमिंग at what point I should record it as revenue, right? खाली एक चीज आती है, कोई भी रेवेन्यू हो, it should not be unreasonable to expect ultimate collection. अगर ऐसा है कि रेवेन्यू नहीं मिलने आएगा, इनफ्लो ऑफ कैश नहीं होगा, तो आप उसको पोस्टपोन कर देंगे. ये चीज याद रखिएगा. कोई भी चीज हो, चाहे वो सेल ऑफ गुड्स हो, रेंडरिंग सर्विस हो, कुछ भी हो, अगर आपको लगे कहीं पे भी कि नहीं कलेक्शन इज इन डाउट, सो मेनी शो सेल्स एंड देन दे शो बैड डेब्ट, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, और यू कैन सिंपली पोस्टपोन दिस. अच्छा, सेल कब दिखाएंगे? मैंने आपको बोल दिया
ओनरशिप पास हो गया, प्रॉपर्टी इन गुड्स फॉर अ प्राइस, ओनरशिप, रिस्क रिवॉर्ड तुमको ट्रांसफर हो गया है, नो अनसर्टिनिटी एग्जिस्ट रिगार्डिंग कंसिडरेशन, तो ये सब कंडीशन बेसिकली जब गुड्स डिस्पैच हो जाता है उसी समय प्रॉपर्टी इन गुड्स भी ट्रांसफर हो जाता है। बट हायर परचेस के केस में ऐसा नहीं होता, समझ में आ रहा है? तो उसमें अपने अलग तरीके से रेवेन्यू दिखाते हैं, वो आपका AS 19 में कवर्ड है। रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, प्रपोर्शनेट कंप्लीशन, या पूरा जब कंप्लीट हो जाए तब दिखाओ। इसमें प्रपोर्शनेटली जैसे जैसे काम कंप्लीट होगा वैसे वैसे जितना सिलेबस कंप्लीट होगा उतना रेवेन्यू मैं दिखा दूंगा। राइट तो पहले आपका जो भी आप जिस चीज का पैसा लिए, जैसे कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो A7 में कवर्ड है, उसमें भी यही चीज लिखा हुआ है। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स में अपने प्रोपोर्शनेटी दिखाते हैं, बट मान लो और कोई चीज का है, पढ़ाने का है या कोई चीज का इंटीरियर डिजाइनिंग का है, राइट जैसे जैसे काम कंप्लीट होगा वैसे वैसे परफॉर्मेंस जैसे जैसे मैं करते जाऊंगा वैसे वैसे आई विल ट्रीट इट एज माई रेवेन्यू, बाकी नहीं तो एडवांस खड़ा कर दूंगा। कंप्लीट हो गया या सब्सटेंशियली कंप्लीट मतलब 90%, जैसे आपके यहां पे सपोज मान लो कोई इंस्टॉलेशन करने आए एसी का, कंप्लीट हो जाता तो आप पैसा देते हैं। ऐसा थोड़ी है ब्रैकेट लगा दिया, इंडोर फिट कर दिया 500 रुपए दे दो, आउटडोर का ब्रैकेट लगा दिया 200 रुपए दे दो, पाइप लगा, ऐसे नहीं होता है। राइट जब तक सर्विस, जब आपका काम है इंस्टॉलेशन का, जब तक सर्विस चार्जेबल नहीं हो जाता तब तक आप पैसा नहीं मांग सकते। और वही बात है, बार बार खाली एक ही चीज बोलेगा, इट शुड नॉट बी अनरीजनेबल टू एक्सपेक्ट अल्टीमेट कलेक्शन। इंटरेस्ट, रॉयल्टी, डिविडेंड। डिविडेंड तो भैया जब सामने वाला डिक्लेयर करेगा तभी तुम्हारा राइट टू रिसीव एस्टैब्लिश होता है। सामने वाला बहुत कमाया है, भर भर के कमाया है, घर उसका पूरा भर गया है, इस बार अच्छा डिविडेंड देगा, प्रॉफिट दिखा दो, नहीं। अनटिल अनलेस सामने वाला डिक्लेयर करेगा, राइट टू रिसीव मेरा एस्टैब्लिश होना चाहिए। राइट टू रिसीव तभी एस्टैब्लिश होगा व्हेन द कंपनी डिक्लेयर्स इट। देख लो, ओनली व्हेन कंपनी declares it। राइट इंटरेस्ट, जैसे टाइम पीरियड बीत जाएगा, मैंने तुमको जनवरी में लोन दिया, जनवरी हो गया तो जनवरी का इंटरेस्ट आई कैन शो, फेब भी बीत गया, जैसे टाइम पीरियड एक्सपायर होगा इंटरेस्ट इनकम दिखाते जाएंगे ऑन अ टाइम प्रोपोर्शनेट बेसिस। रॉयल्टीज तुमको मैंने फॉर्मूला दिया, जितना तुम प्रोडक्शन करोगे उसका तुम मेरे को रेवेन्यू दोगे। राइट जैसे जैसे तुम एक्रूअल बेसिस पे प्रोडक्शन करते जाओगे वैसे वैसे मेरे को देते जाओगे। वही एक ही बात है, रिगार्डिंग कलेक्शन का कोई अनसर्टेनिटी नहीं होना चाहिए। पूरा समरी दे दिया, इसी समरी को आप लोग A4 शीट में बनाकर दीवार में चिपका दीजिएगा एंड रोज सुबह शाम उठते देखिएगा, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, एकदम कुछ सोचने का दरकार नहीं है।
make in A4 and paste it on wall. देखो प्रोविजन बना लो। अगर आप कंसिडरेशन डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं तो रेवेन्यू पोस्टपोन होगा ही। बहुत इजी है। आइए इलस्ट्रेशन नंबर 1। The board of directors decided on 31st March 2002 to increase the sale price of certain items retrospectively. Wow, from 1st January. In view of this price revision with effect from 1st January, the company has to receive 15 lakhs from its customer in respect of sales made from. Accountant cannot make up his mind whether to include in the sales for. बेटा तुम बढ़ा दिया है suddenly. राइट एंड सपोज अब तुमने हमने को 10,000 रुपये दिया और मैंने बोलता हूं कोर्स कराते कराते 2,000 रुपये और देना पड़ेगा, तो हमेशा एक अनसर्टेनिटी अटैच रहेगा। ये देखो, अगर आप रीजनेबल सर्टेनिटी दिखा देंगे कि हाँ लोग, आपका लोगों का कंफर्मेशन दिखाइए कि वो लोग देंगे आपको, दे हैव एक्सेप्टेड दिस क्लेम, शो इट, अदरवाइज यू कांट। पोस्टपोन करो जब तक हाँ नहीं आ जाता। सिंपल है। जितना कॉम्प्लिकेट करेंगे, जरूरी नहीं अगर कोई एस आधा घंटा में हो जा रहा है तो उसके लिए 4 दिन लगाएंगे। Y Limited used certain resources of X Limited. In return, X Limited received 10 लाख रुपया and 15 लाख as in respectively during the year. हो गया है, तो बोलने का क्या है, इंटरेस्ट टाइम बेसिस पे है और ये सामने वाला प्रोडक्शन कर लिया होगा इसलिए आपको रॉयल्टी भी दे दिया है। नंबर 3 रीड करिए। A claim lodged with the railways in March 2001 for loss of goods of 2 lakh had been passed for payment in March 2003 for 1.5 lakh. No entry was passed in the books when the claim was lodged. About the treatment of the following. राइट भैया, लॉस ऑफ गुड्स हो गया एंड 1.5 लाख रुपए तुमने मेरे को दिया है मार्च 2003 में। जब मैंने क्लेम लॉन्च किया तो मेरे को मालूम था क्या पैसा मिल जाएगा? नहीं। रीजनेबल सर्टिनिटी के साथ में आपको प्रूफ करना पड़ेगा। दैट इज ओनली पॉसिबल व्हेन केस आपने लॉन्च किया है, 1-2 बार हियरिंग होगा, उसके बाद आपको मालूम पड़ेगा। अगर लैकिंग है तो उसको पोस्टपोन कर देना ही बेटर है।
ठीक है, और ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी भी नहीं है भैया, ऑर्डिनरी एक्टिविटी हो गया ना, एक्सेप्शनल आइटम्स बोल सकते हैं आप। तो देखो इतना दिमाग तो एग्जाम में किसी का भी नहीं चलेगा। आप मैक्स टू मैक्स इसमें यह लिख सकते हैं कि रेवेन्यू का सर्टेनिटी वॉज लैकिंग एट द टाइम ऑफ रेजिंग क्लेम, देयरफॉर इट शुड बी पोस्टपोन्ड एंड रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन द ईयर इन विच इट इज रिसीव्ड। बस AS5 का लिंक करके थोड़ा ये लोग देखो, एज इट इज वी आर सीइंग दिस राइट, बट एग्जैक्टली बताना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो जिस कॉन्टेक्स्ट में आपको बोलेगा, यहां पे यूजुअली दे विल मेंशन यू द AS नंबर कि कमेंट एज पर AS9 और AS5, तो आप उसी हिसाब से फोकस करिएगा। एनीवे, द फाइनल क्वेश्चन फॉर द डे, तुम कंसाइनी के पास में जो माल पड़ा हुआ है वो मेरा ही है, तो मैं जो तुमको कंसाइनमेंट केसेस पे देता हूं इसमें ओनरशिप स्टिल लाइज विद द कंसाइनर। तुम कितना माल बेचा तुमने मेरे बिहाफ में, इतना ही मैं रेवेन्यू दिखाऊंगा। राइट, सो ये एस बहुत सिंपल है, ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने का कोई दरकार नहीं है। अगर मैं क्विकली आपको रिवाइज कराऊं तो इट डील्स विथ AS9, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट कवर्ड नहीं है यहाँ पे। AS19 लीजेस, हायर परचेज, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स, गवर्नमेंट ग्रांट्स, ये सब चीज यहाँ कवर्ड नहीं है। रेवेन्यू मतलब या तो इनफ्लो ऑफ कैश, रिसीवेबल और काइंड arising from sale of goods, rendering service or use of others enterprise, use of enterprise resources by others. You are using my money, my formula, my I have invested in your company, so you are giving me interest, royalty and dividends. Revaluation reserve not covered, sale of fixed asset not covered, retirement, internal construction, ये सब covered नहीं है। सर्विसेज के केस में प्रोपोर्शनेट भी है और कंप्लीटेड सर्विस मेथड भी है, आप उसी हिसाब से देख के कर सकते हैं। ठीक है, सो और कुछ बोलना नहीं है। जब भी आप रेवेन्यू दिखाएंगे आपको ये अनरीजनेबिलिटी देखना पड़ेगा, that it should be reasonable that collection will be made in future, otherwise you cannot show revenue। ये चीज आपको इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा, राइट। सो इसको पढ़ लीजिएगा। सो AS5 was also small, AS9 was also small, इसमें कुछ है नहीं, थोड़ा theoretical matters था। AS7 थोड़ा बड़ा था, सब प्रैक्टिकल सम्स हम लोगों ने किया है, 12th में भी किया है, 11 में भी किया है, राइट। So that's it from today's session. It was a very small session, and next day we will cover some other AS, right? Till then, goodbye, take care.